Welcome to my class. In this particular video session, we will talk about loan sheet. This is part 2 and it is based on generalized loan sheet with drop down list box. Let's start with the loan sheet. Here we have to make a generalized loan sheet. This is the requirement of the question. First of all, we would like to see what is the exact meaning of this generalized loan sheet. Here you can see that there are different columns. The first one is entity, the second is amount, the third one rate of interest, and the fourth is period. Farmer requires a loan of rupees 2 lakhs and the banker will charge 6% rate of interest. This loan is for a period of 5 years. At the same time, a car driver is in need of bank loan and he requires 5 lakh rupees. Banker will charge 9% rate of interest and the loan repayment period is 6 years. Whereas a shopkeeper requires 8 lakh rupees, the banker will charge 8% and the loan repayment period is 8 years. Here a student requires education loan of rupees 10 lakhs. Banker will charge 7% rate of interest and the loan repayment period is 10 years. Can we make a particular loan sheet which is a general one and which can take care of all these requirements? If a particular loan sheet can take care of all these requirements, then this is generalized loan sheet. And here we will make use of drop down list box. Let us have a demo. In this case, the first one is farmer. He requires 2 lakh rupees and the rate of interest is 6% and the loan repayment period is 5 years. We have given all these parameters here. Loan amount 2 lakhs, rate of interest 6%, period is 5 years. With the help of PMT function, we have calculated the amount of installment. Here the repayment period is 5 years. If I select this particular second line and I drag it down, after 5 years I see that there is zero closing balance. Second case, car driver, he requires a loan of rupees 5 lakh. So I will click here 5 lakhs. The rate of interest is 9%. I will click here 9% and the repayment period is 6 years. In the period, I will click over 6 years. So I drag it down. We see that after the end of the 6 year, the amount is 0. Now let's move on to the third point, that is shopkeeper. He requires a loan of rupees 8 lakhs. The rate of interest charged by the banker is 8%. And the repayment period is 8 years. I drag it down to 8 years. Here at the end of the 8th year, the loan amount is 0. Now the last one is student. He requires a loan of rupees 10 lakhs. Rate of interest charged by the banker is 7% and the period is 10 years. So I click over the loan amount and I fix up 10 lakhs. The rate of interest is 7. In the rate, I click over 7% and in the repayment period, I click over 10 years. Here you can see that we select this 8th year line and move on to 10 year. In all these cases, all repayments are made according to appropriate time period and the amount of installment is calculated automatically. How does this happen? ये किस तरह से होगा? आइएगा इसको देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा. ओके, मेरे पास यहां पर एक ब्लैंक लोन शीट है. मुझे यहां पर
इनके ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाने हैं। In order to create drop down list box, we will write different values in column G, H and I as amount, rate of interest and years respectively. How we are going to do that? I write here some amount, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, I drag it down up to 10 lakh rupees. In the second column, that is H column, I write here 5%, 6%. I select both these cells and I drag it down. In the years, I write here 4 year, 5 year, I drag it down. मैंने इन तीनों कॉलम्स के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज दे दी हैं. In the loan column, click cell 3, cell number. This is cell number 3. Go to data tab, go to data validation. In the allow box, choose list option. Click source. Source के ऊपर ये क्लिक कर दिया and then select amount range. मैंने यहां पर इस amount range को भी select कर दिया. I say OK. See drop down arrow appearing adjacent to loan amount cell, that is C3. आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन एरो बन चुका है और इसके अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज लिस्ट डाउन कर दी गई हैं. ओके, I move on to the second point. Rate of interest. सेल C4 के ऊपर क्लिक किया. I go to data tab. I go to data validation. In the data validation, I go to this allow box and I choose list. सोर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद मैंने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया. आई प्रेस ओके. सी ड्रॉप डाउन एरो अपेयरिंग एडजेसेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल, दैट इज C4. यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया और इसके अंदर हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यूज हमें मिल गई. आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. क्लिक C5 सेल. दिस इज C5 सेल. इस पे क्लिक किया. गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर हम आए और यहां पर हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके अलाउ बॉक्स, दिस अलाउ बॉक्स, चूज लिस्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन द सोर्स. सोर्स पे क्लिक किया एंड सिलेक्ट ईयर्स रेंज. मैंने ये ईयर्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया. आई प्रेस ओके. आप इस पीरियड वाले C5 सेल के बाहर एक देखेंगे कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो अपीयर कर रहा है. मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं देख सकता हूं कि ये मुझे लिस्ट बॉक्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ I fill these values. 5% period. I click over this point, 4 years, and now I need to calculate the PMT, that is installment. I click over installment cell
एक्सेल के अंदर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पीएमटी है, तो मैंने यहां पर इक्वल्स टू को प्रेस किया एंड आई राइट डाउन पीएमटी, पेरेंथेसिस ओपन। उसने मुझे कुछ पैरामीटर्स दे दिए। पहला पैरामीटर है रेट, तो मैंने यहां पर रेट का पैरामीटर क्लिक कर दिया, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड पैरामीटर है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास यहां पर 4 है, मैंने यहां पर इस पे नंबर ऑफ पीरियड को क्लिक कर दिया। थर्ड पैरामीटर दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास ये 2 लाख रुपीस है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद मेरे पास फ्यूचर वैल्यू, एट द एंड ऑफ द पीरियड ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और मैंने चूज किया कि हम पीरियड के एंड के अंदर पेमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूला अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी किया है, दैट वाज लोन शीट पार्ट 1। दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग हियर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये मुझे एक वैल्यू दे रहा है 56,402 रुपीज 37 पैसा। नाउ आई मूव ऑन टू द loan sheet. Here I write a formula equals to this amount. I press enter. In order to calculate the interest is, again we will have a formula. Interest is equal to opening balance multiplied by rate of interest. Since this rate of interest is going to be same, rate of interest तो सेम रहेगा, तो हमने यहां पर इसको फिक्स कर दिया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। आई प्रेस एंटर, आई गेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। देन अगेन इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी ओवर ए पीरियड सेम रहेगा, तो हम इस अमाउंट को भी फिक्स करेंगे। ये मैंने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को भी फिक्स कर दिया। आई प्रेस एंटर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस, और इसके लिए हमें इक्वल्स टू के साइन के बाद ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम यहां पे प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस this installment amount. I get the value of closing balance. Now this closing balance will become the opening balance of the next year. This is equals to E8. I press enter. फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। मैंने इस इंटरेस्ट को फिल हैंडल के जरिए ड्रैग किया, इंस्टॉलमेंट को भी मैंने फिल हैंडल के जरिए ड्रैग किया। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहेगा, तो दिस अमाउंट इज सेम। अब ये क्लोजिंग बैलेंस के अमाउंट को मैंने ड्रैग कर दिया। क्योंकि ये हमारा पीरियड 4 साल का है, तो ये अमाउंट 4 साल के अंदर 0 हो जाना चाहिए। मैंने पूरी सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया, मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर से लिया था, जबकि सेकेंड ईयर के अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस इस क्लोजिंग बैलेंस से लिया है, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो इसलिए हम सेकेंड ईयर को कंप्लीट सिलेक्ट करके इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं कि 4 साल के बाद ये अमाउंट 0 हो गया। आइएगा भाई इस क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मर ने 2 लाख रुपए का लोन लिया और उसने 6% इंटरेस्ट देना है, और 5 साल के लिए उसका रीपेमेंट पीरियड है। लोन अमाउंट 2 लाख रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हम यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर देंगे 6%। पीरियड इज 5 ईयर, मैं इस पीरियड को भी चेंज कर दूंगा। अब इस 4th ईयर को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के जरिए हमने ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हैं कि फार्मर 2 लाख रुपए का लोन ले रहा है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 साल के लिए, और 5 साल तक वो इतनी इंस्टॉलमेंट को रेगुलरली पे करेगा।
47,479 इस इंस्टॉलमेंट को वो पे करेगा एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर अमाउंट इज 0। ये बैलेंस 0 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कार ड्राइवर जिसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है। ओके, सबसे पहले मैं ये लोन अमाउंट को चेंज करूंगा। लोन अमाउंट 5 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया 9%। पीरियड इज 6 ईयर्स, मैंने इस पीरियड को भी 6 ईयर कर दिया। सारी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है क्योंकि ये 6 साल का पीरियड है और अभी तक हमने सिर्फ 5 साल को ही कैलकुलेट किया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 5 साल का पीरियड कैलकुलेट हुआ है। मैंने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ 6 ईयर द क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स 0। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शॉपकीपर ने 8 लाख रुपए का लोन लिया है। मैं इस लोन अमाउंट को एक बार फिर चेंज करूंगा, 8 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉपकीपर पे करेगा 8%। 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन रिपेमेंट पीरियड इज 8 ईयर्स। मैं इस 6 को 8 ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। I select the 8 years. Now installment is calculated automatically. अभी तक ये 6 साल का रिजल्ट हमारे पास आया है। मैंने इस 6 ईयर के रिजल्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। आप एक बारी दोबारा देख सकते हैं कि 8 साल के बाद जो शॉपकीपर ने लोन दिया है वो लोन उसका 0 हो गया। इट मीन्स शॉपकीपर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया। हमारे पास लास्ट एंटिटी स्टूडेंट है जिसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। आई विल कीप दिस अमाउंट एज 10 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकर इज 7%। तो मैंने यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7% कर दिया। अगेन द पीरियड ऑफ रीपेमेंट इज 10 ईयर इन केस ऑफ स्टूडेंट। हमने यहां पे पीरियड को 10 ईयर कर दिया। ये अमाउंट मेरे पास 8 साल तक का कैलकुलेटेड आ गया। मैंने 8th ईयर को सिलेक्ट किया और इसे नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर वी सी दैट द ऑल अमाउंट इज रीपेड बैक बाय द स्टूडेंट फॉर हिज एजुकेशन लोन। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स थे। डिफरेंट एंटिटीज ने अमाउंट डिफरेंट बोरो किया है, बैंकर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट चार्ज किया है और इन एंटिटीज का जो पीरियड ऑफ रीपेमेंट है वो भी इन चारों केसेस के अंदर डिफरेंट है। बट विद द हेल्प ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट वी कॉल एज जनरलाइज्ड सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी और इसको आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।